Hello everyone, welcome to lecture number 4 of our unit 11, standard 11th, the p block elements. As we know that at presently we are located on the physical properties, or sometimes called as an atomic and physical properties of group 13, right? So in group 13 we completed two different properties. One is the electronic configurations and number 2 is the atomic and ionic radius in our last lecture, means lecture number 3. So today we starts with our continued journey about the 11.1.3 is the ionization enthalpy. And as we know that this ionization enthalpy is related with the atomic size, right? So the first ionization enthalpy, the meaning of first ionization enthalpy means we have to remove only one electrons, right? Of the elements of the group 13 are lower than the corresponding elements of the group 2, means alkaline earth metals. So what is the reason behind that? Why the first ionization enthalpy of group 13 are lower than the corresponding elements of group 2? This is because it's due to the reasons that the elements of group 13, we know that in group 13 the 3 electrons in the valence shell and 2 of these are present in the s orbital and 1 in the p orbital. And for the first ionization enthalpy means we have to remove the electron from the p orbital in case of group 13 elements. But where in the alkaline earth metals, so we know that all these 2 electrons which are located in s block means s orbitals, so s electron of the same principal cell has to be removed. So s electron near the nucleus, it means that this is more penetrating towards the nucleus, so it's more strongly attracted than the p electrons of the same principal cell. So hence the removal of the p electron is much easier in the s electron, and therefore the first ionization enthalpy of the elements of group 13 are lower as compared to the corresponding value of alkaline earth matter. So this is the number 1 point. Another point is like that, on moving down the group, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे चले जाएंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, जैसे मैं अभी बोरोन से एल्यूमिनियम ही जा रहा हूं, राइट? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मींस डेल्टा, ये जो मैं आपके बात करता हूं, विच इज डिक्रीज as expected. क्यों हो रही है? Which is due to increase in atomic size, expected due to increase in atomic size. जो atomic size increase होने की वजह से, एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, राइट? तो एक स्क्रीनिंग इफेक्ट की जो बात है यहाँ पे, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि एडिशन ऑफ न्यू सेल इन एवरी सक्सीडिंग एलिमेंट्स होता है, तो उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इसके लिए जवाबदार है. सो विच आउटवेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज, तो इससे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट? लेकिन मैंने अभी आपको बोला था कि बोरोन टू एल्यूमिनियम के बारे में बात की हुई है, लेकिन जैसे जैसे मैं अभी देखिए, हाउएवर इन द केस ऑफ, मैं एक केस आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूं, जो डेल्टा हमारा जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ऑफ गैलियम, राइट, जैसे इज ओनली स्लाइटर हायर देन दैट ऑफ द एल्यूमिनियम, राइट? तो वो थोड़ी क्या है, एल्यूमिनियम से थोड़ी ज्यादा है, राइट, ऑफ एल्यूमिनियम. कितना है? 1 किलो जूल पर मोल जितना ही वो ज्यादा है. जैसे एल्यूमिनियम का 577 है और गैलियम का 578 है. आपको समझ में आ रहा है? ये जो गैलियम का है ना, वो 578 किलो जूल पर हुए, इसका 577 है. यानी जो हमें डिफरेंस मिल रहा है, जो मेरा डेल्टा आई, जो इसका जो डिफरेंस है, वो मुझे 1 किलो जूल पर मोल का मुझे डिफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, than that of the aluminium, while that of thallium is much higher than that of the aluminium, gallium and indium. तो उसका जो explanations क्या होगा, अभी अब हमें देखना पड़ेगा कि इसका रीजन ये है कि हमें मालूम है कि एल्यूमिनियम फॉलोज इमीडिएटली आफ्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स,
लेकिन मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम है ना वो एस ब्लॉक के बिल्कुल बाद में आता है, लेकिन जो गैलियम और इंडियम है इंडियम होते हैं विच इज फॉलोड आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड थेलियम तो डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के बाद में आता है। सो जो एक्स्ट्रा डी और एफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैंने यहाँ पे आपको 3d10 का भी देखा होगा, 4d10 का भी देखा होगा, और लास्ट वाले थेलियम में तो आपने 5d10 और 4f14 भी देखा होगा, राइट। सो दिस एक्स्ट्रा डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं विच इज डू नॉट शील्ड, यानी वो स्क्रीन नहीं कर रहे हैं द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस वेरी इफेक्टिवली, क्योंकि वो पूरी तरह से जैसे क्या कहते हैं ना कि डी होती है उसकी साइज ज्यादा होती है एफ के, तो वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से वो इतना स्क्रीन नहीं लगा पा रहे हैं न्यूक्लियस के साथ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। तो उससे जो मेरा जो प्रोसेस होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, तो वो न्यूक्लियस से अच्छी तरह से जुड़ेंगे। सो हेंस लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड टू फॉर देयर रिमूवल। मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूं, जो पी वाला एरिया होता है ना वो छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा होता है, यानी उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में वो एक रिपल्सन इफेक्ट ज्यादा होता है। डी वाला जो एरिया है वो बड़ा हो गया है, एफ का बिल्कुल बड़ा हो गया है, यानी डी के जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ डेफिनेटली वो इसका रिपल्सन होगा, लेकिन थोड़ा स्प्रेड होने की वजह से वो उसका कम हो गया है, और एफ में तो उससे भी कम हो गया है। तो उससे क्या होगा कि इसका स्क्रीनिंग इतना इफेक्टिवली काम नहीं करने की वजह से वो सभी इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जुड़े होते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन के बीच में इतना रिपल्सन बढ़ जाता है कि वो नया आने वाला इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही रिपल्सन लगा देता है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं होता है। नया वाला इलेक्ट्रॉन को पुराने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड है वो इतना स्क्रीनिंग यानी उसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट नहीं लगा पा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि गैलियम के हाई आयोनाइजेशन जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, आपको समझ में आ गया होगा कि जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, सो विच इज देन एल्यूमिनियम। सो जैसे जैसे मैं गैलियम से इंडियम तरफ में चलता जाऊंगा तो जो वो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि 4D वाला भी आ रहे हैं, राइट। तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो भी 18 यूनिट्स का बढ़ गया है। सो IE1 जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इंडियम इज लोअर देन दैट ऑफ द गैलियम। सो हम यहां से इस तरह से भी यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं कि गैलियम से किस तरह से वो अपनी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। समझ में आ रहा है? फिर से मैं आपको यहाँ पे वो दिखाना चाहता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो मेरे पास मैं आपको ये भी कहूंगा कि जैसे जैसे इन प्रेजेंस ऑफ एडिशनल 4f5d इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो थेलियम का जो होगा हायर होगा। फिर ये तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में मैंने बात की थी, लेकिन हमें एक्सपेक्टेड है एक बार यहाँ पे हम देखेंगे कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा तो क्या होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है डेल्टा IH2, फिर उसके से क्या होता है डेल्टा IH3। तो इसी तरह से चलता जा रहा है, क्योंकि जो मेरा जो फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी का होता है तो वो हाई होता है। समझ में आ रहा है? मैं आपको फिर से अभी आपको डेटा भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूं। तो अब देखिए उसके में मैं आपको ये डेटा इस तरह से भी दिखा सकता हूं कि मेरे पास जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल ही आपको दूंगा। मेरे पास एक बोरोन है, तो बोरोन में उसका जो डेल्टा A1 है वो नियर अबाउट 800 किलो जूल पर मोल है। फिर उसका जो डेल्टा जो दूसरी एंथैल्पी होती है उसकी वो 2427 है। फिर उसकी जो तीसरी वाली होती है वो है 3659 है, और उसकी जो चौथी वाली होती है वो है 25026। समझ में आ रहा है? तो इसलिए वो बढ़ेगा ही, वो डेटा तो ज्यादा से ज्यादा मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला जो पॉइंट है वो आपको पूरा समझना चाहिए कि उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे वो क्या वर्क कर रहा है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। समझ में आ गया है? फिर से मैं अभी आगे अपनी जर्नी और यहाँ से फिर से आगे निकलते हैं हम। अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेरा 11.1.4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले हम उसका जो पहला कॉम्प्रिहेंसिव है, द एलिमेंट्स ऑफ द बोरोन फैमिली आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। ये जो बोरोन फैमिली है मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जो बोरोन फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑफ द alkali metals and alkaline
अर्थ मेटल्स, क्योंकि वो तो हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट चले जाएंगे एटॉमिक साइज कम होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो ज्यादा हो रही है। फिर यहाँ पे ये भी पॉइंट होगा ना, इन बोरोन फैमिली में बोरोन से एल्यूमिनियम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीज, यहाँ पे बोरोन टू एल्यूमिनियम में जैसा आगे बढ़ रहा हूँ तो पहले वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजेस राइट फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे नीचे चले जाएंगे तो पहले क्या हुआ, बोरोन टू एल्यूमिनियम डाउन हो गया है, फिर क्या हो गया है, देन इंक्रीज मार्जिनली डाउन द ग्रुप। तो इसकी वजह क्या है, ये क्यों हो रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। मैंने अभी आपको दिखाया था कि भाई जैसे मैं बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ चला जा रहा हूं, देखिए बोरोन से एल्यूमिनियम की तरफ मैं चला जा रहा हूं। सो द एटॉमिक साइज उसमें क्या होगा, मेरे पास एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होगा, कंसिडरेबली इंक्रीज राइट। सो अट्रैक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स वो डिक्रीज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। बट उसके बाद क्या होगा, देयर आफ्टर इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट द साइज इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके बाद की जो मैं प्रोसेस में बता रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द साइज इंक्रीजिंग, उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं जैसे जैसे साइज, लेकिन ग्रुप में तो हम जैसे जैसे नीचे चले जा रहे हैं साइज तो इंक्रीज हो जा रहा है, बट इफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वहां पे, न्यूक्लियर चार्ज राइट, वो क्या हो रहा है, इंक्रीजेस हो रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग of the inner d and f electrons। तो उससे वो पुअर शील्डिंग होता है डी और एफ का। सो उसका मतलब ये हुआ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज हो जाएगा राइट। सो इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं आपको उसका डेटा भी दिखाना चाहता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पोलिंग स्केल का मैं डेटा आपको दिखाना चाहता हूं। बोरोन है ना, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2, एल्यूमिनियम की है 1.5, फिर आपको मिलेगी गैलियम में वो 1.6, फिर मुझे मिलेगी इंडियम में 1.7 और फिर मुझे थेलियम में मुझे मिल रही है 1.8। तो आप देखेंगे मैंने अभी आपको बताया कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्स्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम एंड देन इंक्रीजेस मार्जिनली। जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन होते जा रहे हैं, तो ये जो आपको डेटा आपके लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे सबके लिए जिम्मेदार क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है। शील्डिंग का मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए कि एक ऐसा शील्ड बना दे ताकि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन को उसका न्यूक्लियर चार्ज से उसका अट्रैक्शन कम हो जाए। ये तभी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमें मालूम है कि डी और एफ यहाँ पे पूरी तरह से भरी हुई है, तो उसका मतलब ये पूरा स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, यानी दोनों के बीच में रिपल्सन बिल्कुल कम हो रहा है। इसलिए नया आने वाला इलेक्ट्रॉन को जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के सिग्नल अच्छी तरह से मिल रहा है, इसकी वजह से साइज उसकी कम हो रही है, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके ऊपर बढ़ रहा है। में साइज तो ज्यादा हो रही है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, समझ में आ रहा है। फिर भी मैं अपनी तरफ से थोड़ा मैं अभी एक दो पॉइंट्स पे यहाँ पे आपके साथ और भी शेयर करना चाहता हूं। ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर या मेटालिक कैरेक्टर, अभी आपके बुक में इस तरह से नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको क्यों समझाना चाहता हूं। आप देखिए, आपको दिया हुआ है लेकिन आपको इसे अलग पॉइंट की तरह से यहाँ पे उसको ट्रीट नहीं किया हुआ है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, ये जो मैं आपको बात कर रहा हूं, जो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसका जो मैं आपको बोलता हूं उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, विच इज लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, क्योंकि हम कंपेयर किसके साथ करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन ग्रुप 1
एंड 2, यानी अल्कली और अल्कलाइन से उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो कम हो रहा है। दूसरा क्यों हो रहा है इसके लिए मैं अभी एक्सप्लेनेशन उसको दूंगा। और ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे चले जा रहे हैं, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, द यानी मेटालिक कैरेक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है ऑफ द एलिमेंट्स। जो पहले जो एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं वो क्या होगा, एलिमेंट्स फर्स्ट इंक्रीजेस फ्रॉम, कहां से कहां तक, तो कि बोरोन से एल्यूमिनियम तक वो बढ़ रहा है, राइट, एंड देन डिक्रीजेस। सेम रीजन है, सेम जो हमने पढ़ा हुआ था फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थेलियम, सेम रीजन है। अब अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाता है तो इसका मतलब ये मेटालिक नेचर में चला जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में। एल्यूमिनियम, बोरॉन से एल्यूमिनियम में क्या हुआ कि इसमें अभी डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं है, यानी बोरॉन और एल्यूमिनियम दोनों के बारे में हम बोलेंगे तो इसका इनर कोर इनर्ट गैस ही है। समझ में आ रहा है, उसका इनर कोर क्या है, इनर्ट गैस है। तो इनर्ट गैस में से मुझे निकालने के लिए तो मुझे मालूम है कि वो इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन क्यों बाद में क्यों यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैं नीचे चला जा रहा हूं तो वो डी ग्रुप का और एफ ब्लॉक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा हो रहा है, यानी वो इजीली इलेक्ट्रॉन अपना लूज नहीं कर पाने की वजह से उसका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसे मैंने उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं, बोरोन में से, एल्यूमिनियम में से भी 3 निकालने हैं, लेकिन ऐसा थेलियम में से 3 इलेक्ट्रॉन के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? मैं फिर से आपको यहाँ पे एक और बात भी आपको समझाना चाहता हूं। यहाँ पे इन बोरोन हैज द हाईएस्ट सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी, right, so they have a little tendency to lose electron and hence is least electropositive। इसकी वजह से तो हमने बोला था कि वो जो बोरोन होता है वो नॉन मेटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन जैसे हमने बोरोन टू एल्यूमिनियम में चले जाएंगे तो उसकी जो तीनों, जैसे फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एंथैल्पी का हम सम करेंगे तो विच इज डिक्रीज सब्सटेंशियली। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, सो एल्यूमिनियम हैज हाई टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी तरफ से हम बोलेंगे तो कि एल्यूमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम इज अ मेटल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट this electropositive character of the remaining elements can be more easily explained on the basis of their respective electrode potential से हम देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्यों कम हो रहा है वो इसके बारे में मैंने अभी आपके साथ बात यहाँ पे की हुई है। उसके बाद हम थोड़ा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और बाद में हम डेंसिटी को भी देखना चाहेंगे। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो ग्रुप 30 का होता है, यहाँ पे जो ग्रुप 30 का जो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट्स ग्रुप 13 के, राइट, विच हम उसको बोलेंगे डू नॉट शो अ रेगुलर ट्रेंड। जैसे हमने ग्रुप 1 में एस ब्लॉक में देखा था, ग्रुप 2 एस ब्लॉक में अल्कलाइन अर्थ में जो हमें ट्रेंड दिखाई दे रहा था वो यहाँ पे इस तरह से नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे ये भी होगा अनयूजुअल क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज ड्यू टू द अनयूजुअल जो उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं ऑफ बेरियम एंड गैलियम। एक्चुअली द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज शार्पली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे मैंने आपको बोला कि बोरोन से बोरोन 2 मैं कहां पे चला जा रहा हूं, गैलियम तक चला जा रहा हूं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, राइट, शार्पली डिक्रीज हो रहा है। देन इंक्रीज, फिर जो गैलियम से थेलियम तक में गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अमोंग द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 गैलियम हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो नियर अबाउट 303 केल्विन है।
राइट। उसको इससे भी बोलेंगे विच इज नॉर्मली एग्जिस्ट एज ए लिक्विड इन समर, राइट। समर में तो वो लिक्विड फॉर्म में ही गैलियम होता है। बोरोन जो होता है उसका जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है 2453 केल्विन का उसका मेल्टिंग पॉइंट है, बिकॉज इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ आइसोहेड्रल। वो जो थोड़ा है ना अपनी तरह से आइसोहेड्रल में रहने की, आइसोहेड्रल का मतलब ये होगा कि उसके पास 20 फेसिस और 12 कॉर्नर्स होते हैं, उसको हम आइसोहेड्रल बोलते हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या होगा, आइसोहेड्रल में आपके थोड़ी देर के बाद भी मैं आपको उसकी एक पॉइंट भी दिखाऊंगा कि आइसोहेड्रल का जो उसका जो फॉर्म होता है, यानी हम उसको बोलेंगे कि भाई उसके पास फेसिस कितने हैं, उसके पास जो मैं एक बात उसका प्रॉपर्टीज ऑफ बोरोन आऊंगा ना तब मैं उसका शेप या कुछ इस तरह से मैं दिखाने की भी कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है? सो मैं अभी शॉर्ट में दिखाना चाहता हूं कि वो उसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो होता है आइकोसाहेड्रल होता है। इसका मतलब होता है 20 फेस एंड 12 कॉर्नर। इसका मतलब क्या होगा, इसके जो फेसिस है वो 20 फेसिस हो गए और कॉर्नर क्या होगा, 12 कॉर्नर्स होगा। समझ में आ रहा है? सो इसका मतलब यह हुआ कि बोरोन एटम्स एट ऑल द 12 कॉर्नर्स एंड ईच बोरोन एटम इज बॉन्डेड टू द 5 इक्विडिसेंट नेबर, और उससे कॉन्ट्रास्ट में क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है गैलियम का वो क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द बोरोन, क्योंकि गैलियम होता है मेटल्स में सो हैज अ 1 क्लोज नेबर एट द डिस्टेंस ऑफ 2.43 एंड 6 मोर डिस्टेंस नेबर एट द डिस्टेंस। उसका जो है ना वो थोड़ा खुला हुआ होने की वजह से उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो मुझे यहाँ पे कम मिल रहा है, राइट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हम कुछ इस तरह से ही बात करेंगे कि उसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स है वो विच इज उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से सो इट्स अ यूजफुल मटेरियल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर्स। फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में यहाँ पे बात की हुई है, तो बॉइलिंग पॉइंट्स उसका जो होता है मुझे 2676 केल्विन का गैलियम का मुझे बॉइलिंग पॉइंट मुझे मिला है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो है 2676 केल्विन है, वो ज्यादा है बॉइलिंग पॉइंट। सो it is useful for measuring high temperature. Another unusual property of gallium is like germanium and bismuth. Liquid gallium expand when it's changed into solid, right? तो वो जो है ना मैं क्या बोल रहा हूं उसको, लिक्विड गैलियम है वो सॉलिड में कन्वर्ट होने के तब वो एक्सपांड करता है। सो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड गैलियम इज लेस देन ऑफ द लिक्विड गैलियम। उसके अलावा हम देखेंगे कि एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थेलियम है वो क्लॉस पैक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। सो देयर द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज, क्योंकि जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ किसका बात कर रहा हूँ मैं, एल्यूमिनियम के बारे में बात करता हूँ, इंडियम के बारे में बात करता हूँ और थेलियम है, उसके जो स्ट्रक्चर है ना वो किससे होते हैं, क्लॉस पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से देयर मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू इंडियम एंड इंक्रीज अगेंस्ट फॉर थेलियम। However, the boiling point of this element follow regular trend होता है, डिक्रीज ही होता है इज मूविंग डाउन द ग्रुप। ये थोड़ी बात मैंने यहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में की है। अभी एक डेंसिटी के बारे में भी हम देख लेते हैं। सो ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, इसमें क्या होगा, ड्यू टू स्मॉलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस, राइट। तो उससे क्या होगा कि ग्रुप 13 है वो हायर डेंसिटी, ग्रुप 13 एलिमेंट्स होते हैं, राइट, हैव हायर डेंसिटीज एज कंपेयर्ड टू एलिमेंट कंपेयर टू ग्रुप 2, राइट। जो अल्कलाइन से होते हैं उससे उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। जैसे जैसे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे, राइट, द डेंसिटी इंक्रीजेस, द डेंसिटीज
इंक्रीजेस। क्यों हो रहा है? इंक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज इज ड्यू टू अ कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट and which outweighs the effect of increased atomic size. So density of boron and aluminium are however quite lower than those of the other members. तो ये जो पूरा मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया हुआ था, तो वो पूरा क्या था? फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हमने यहाँ पे बात की हुई है। अभी जो हम यहाँ पे मेन अभी प्रोसेस में चले जाएंगे और वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। So after the completion of physical properties, some important chemical properties of group 13, right? Now we discuss about the first point is oxidation states and trends in chemical reactivities. तो उसके बारे में हम पहले बात करेंगे। हमें मालूम है कि the group 13 elements, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, जो ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो कहां पे होते हैं? इन द s ऑर्बिटल एंड 1 इन p ऑर्बिटल, बराबर है, ऑफ द वैलेंस सेल। जो इसकी वैलेंस सेल की हम देखेंगे, जो तो 2 s में होते हैं और 1 p में होता है, राइट? सो these elements are expected to show a uniform oxidation state of +3. तो इसकी वजह से उसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए, राइट? अभी जो कहानी में ट्विस्ट कहाँ पे आ रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। बट दिस इज ट्रू फॉर बोरोन एंड एल्यूमिनियम, राइट? ये आपने देखा होगा कि बोरोन है और एल्यूमिनियम है, विच शोज एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 ओनली। बट जो मेरे पास गैलियम है, फिर मेरे पास इंडियम है और मेरे पास थेलियम है, तो वो +1 एंड +3 दोनों यहाँ पे दिखाते हैं। एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, वो इसके लिए मैंने आपको बोला था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट एक पॉइंट आता है, इसके लिए जिम्मेदार है। क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट है वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखिए, जैसे जैसे मैं एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे मैं नीचे नीचे चला जा रहा हूं, मैं तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे चले जाएंगे, राइट, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारे होते हैं उसकी क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, वाइल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या हो जाएगी? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी भाषा में हम बोलेंगे तो हम उसको शॉर्ट में इस तरह से भी बोलेंगे ना कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है, तो उसका जो ऑर्डर ये होना चाहिए ना, एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम एंड फिर थेलियम, राइट? लेकिन मैंने अभी आपको बोला था कि गैलियम, इंडियम और थेलियम बोथ हैविंग अ +1 एंड +3 स्टेट्स आर ऑब्जर्व्ड, बट इन केस ऑफ गैलियम, राइट, एंड इंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे मोर स्टेबल है, राइट, देन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो गैलियम और इंडियम जो दोनों है वहां पे, उसके जो सॉल्ट्स है वो दोनों तरह से डिसप्रपोर्शन रिएक्शंस कर पाएंगे ना। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, देखिए मैं आपको एक रिएक्शंस देता हूं। मेरे पास एक गैलियम का एक कंपाउंड है, एक इसका सॉल्ट है, राइट? तो गैलियम वहां पे क्या होगा? सॉलिड में चला जाएगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अभी +1 पे है। तो इस तरह से भी हो सकता है ना, वो गैलियम +3 में भी जा सकता है, जैसे उसको हमने प्रोसेस किया हुआ है, राइट? तो इस तरह से भी हो सकता है। और इस तरह से मैंने इंडियम का मैं दिखाना चाहता हूं, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो वो कहां पे चला गया है? 2 इंडियम पे चला गया है, प्लस जो इंडियम का जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी मुझे मिलेगा, और 3x- एक्वियस में चला गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको ये बोल रहा हूं कि
गैलियम और इंडियम के केस में जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जैसे गैलियम और इंडियम के लिए मैं इस तरह से भी बात करूंगा तो दे अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन यानी अपना ही सेल्फ ऑक्सीडेशन भी किया हुआ है और सेल्फ रिडक्शन भी किया हुआ है। ये दोनों रिएक्शंस में आपको जो दिखा रहा हूं वो है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। इसमें अपना ही क्या होगा? रिडक्शन, और अपना ही क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये +1 में से 0 में चला गया है और +1 में से +3 में चला गया है। आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वो क्या है? 0 है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? +3। उसी तरह से यहाँ पे आपको 0 मिल रहा है और यहाँ पे +3 मिल रहा है, राइट। अभी हम देखेंगे ये क्यों हो रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो ऑन द अदर हैंड, जैसे मैं आपको थेलियम के बारे में बात कर रहा हूं, अभी मैं थेलियम के बारे में बात कर रहा हूं, तो मेरे पास थेलियम +3 का एक सॉल्ट है, राइट। तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन करके Tl+1 में जाने की ज्यादा वो कोशिश करेगा, राइट। सो थेलियम इसमें क्या हुआ? उसका जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था वो +1 में जा रहा है। इसका मतलब है कि टेल्यूरियम +3 सॉल्ट होता है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह चल रहा है ना, क्योंकि उसको क्या है? सामने वाले का ऑक्सीडेशन करना है, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो सपोर्टेड क्योंकि इसका जो ई पोटेंशियल होता है 1.25 सॉरी यहाँ पे 1.25 वोल्ट का मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये जो क्यों हो रहा है आपको ये समझना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी बोला था कि जो पहले वाले 2 बंदे थे बोरोन एल्यूमिनियम वो +3 दे रहे थे, फिर गैलियम और इंडियम में +1 +3 दोनों का हुआ, लेकिन उसमें +3 ज्यादा स्टेबल था और लास्ट वाला था उसमें +1 क्यों ज्यादा स्टेबल हो रहा है? So reason why the stability of +1 oxidation state increase down the group। तो जैसे मैं देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूं as we move down the group, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे चले जा रहे हैं, कहाँ के? ग्रुप 13 की बात कर रहा हूं। जो मेरा जो s इलेक्ट्रॉन्स था, मेरे पास जो s इलेक्ट्रॉन्स था ऑफ द वैलेंस सेल, जो मेरे पास वैलेंस सेल में s इलेक्ट्रॉन था, right, to participate in bond formation decreases, to participate in the bond formation वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सो दिस डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जो ये डिक्रीज होने की वजह ही क्या है? तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलेंगे। ये यहाँ पे गेम चेंजर है, यहाँ पे ये इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन बच्चे को ये क्वेश्चन होता है कि सर जी ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या? दूसरी आसान भाषा में हम समझाए तो कि जो NS2 का, देखिए मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं, गैलियम है, इंडियम है और थेलियम है, राइट। उसमें जो NS2 वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 वाले इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो वो पेयरिंग में ही रहना चाहते हैं, वो निकलना नहीं चाहते हैं। क्यों? तो कि सेम वही वजह है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग, या हम उसको बोलेंगे इनइफेक्टिव शील्डिंग ऑफ द NS2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस सेल बाय इंटरवीनिंग, जो उसका इंटरवीनिंग होता है वो D एंड F इलेक्ट्रॉन से होता है। दूसरा मैं आपको फिर से मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं कि जो है वो इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या होगा? जो पुअर और इनइफेक्टिव शील्डिंग होगा NS2 इलेक्ट्रॉन्स का, उसकी वजह है। दूसरा एक रीजन है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट से जो एल्यूमिनियम से थेलियम में हम चले जाएंगे तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। So the energy required to unpair this NS2 electron is not compensated by the energy released in the forming of 2 additional bond। तो वजह ये हमें दिखाई दे रही है कि the inert pair effect becomes more and more predominant। We go down the group because of the increased nuclear charge with the effect of corresponding increase in atomic size। तो S इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा
वो अपना टाइट हो जाएगा वो न्यूक्लियस के साथ। सो उसका जो मुझे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेगा, सो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। कहां से? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। क्योंकि जो पुअर शील्डिंग की जो इफेक्ट है वो नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा शील्डिंग होगा, तो वो ज्यादा खिंचाव में रहेगा। ज्यादा खिंचाव में रहने की वजह से तो वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे हैं। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का ये फंडा यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो आज यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट में हम आगे बात करेंगे।